Good morning, 10th standard. Today we start the geography 5th lesson, natural vegetation and wildlife. Now, in the first unit test, we completed up to the fourth one lecture lesson. The lesson fourth one lesson name is there, climate is there. Now, in that lesson, we see the differentiate between the Brazil and India, which types of climate is there. Now, today we are going to learn the natural vegetation and wildlife. What is which difference is there in the vegetation in between the Brazil and India, and which types of animals are present in Brazil and which types of animals are present in India. That all things we are going to learn today. Now see, there is so much geographical difference is there in that vegetation. Now there is a different types of plants are present in the Brazil, that plants are not present in the India, and which animals are present in Brazil, that animals are not present in India. Means some little bits animals, the tiger, then python, then these animals are means basically present both area, मतलब ब्राज़ील और इंडिया दोनों जगह ये जो बेसिक जो एनिमल्स है वो हमें दिखाई देते हैं. बट सम रेयर स्पीसीज आर देयर ना, दैट स्पीसीज आर प्रेजेंट इन ओनली ब्राज़ील, अदरवाइज प्रेजेंट इन ओनली इंडिया. नाउ सी द ब्राज़ील. See, you might have recognized the species shown above, the discussed above them. Now, because of there is a similarity in between them and many Indian species, but these species are not found in Brazil. मतलब दोनों में एक कभी कभी सिमिलरिटी हो सकती है, but sometime there is that animals are not present in the Brazil. Now, but these species are found in the Brazil. Look their name. Now we study the variety of flora fauna in the Brazil. Now, first of all, see, there is a rainfall is there in 5.2. Flora fauna of the Brazil has been shown in the crops profile along with the physiography. मतलब जो ये फिजियोग्राफी है ना, इसके कारण है ना, इसके ऊपर से हम लोग को है ना वो ब्राज़ील में किस तरह का है ना वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ये हमें क्या होता है मालूम पड़ता है. उधर के जो फॉरेस्ट है ना वो दिया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन equatorial forest, then deciduous forest, that all things, temperate forest, ये सब है ना, मतलब है ना कोस्टल प्लेन है, तो ये सब है ना उधर क्या है डिफरेंशिएट है. एंड दैट एनिमल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स इन दैट रेप्टाइल्स एंड ग्रासलैंड एनिमल्स आर प्रेजेंट हियर. सी, temperate forest में ना reptile and grasslands are present, and there is a grassland animals are there, then there is a aquatic and aerobial reptiles are there, variety of apes, मतलब जो monkeys रहते हैं ना वो उधर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसमें गोरिल्ला वगैरह, ये गोरिल्ला ये एनिमल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. नाउ सी द ब्राज़ील वेजिटेशन. Vegetation means which types of vegetables are grown there, crops are there. In the Brazil, rainfall varies due to the physiography. मतलब ब्राज़ील का जो रेनफॉल है वो क्या है डिफरेंट है, मीन्स देर इज नो सेम रेनफॉल इन एवरी एरिया इन ब्राज़ील, देर इज डिफरेंशिएट इन बिटवीन देम. नाउ इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्विलैटरल रीजन इट रेन थ्रू आउट द ईयर. कोई ना इक्विलैटरल जो रीजन है ना उधर है ना 12 महीने मतलब क्या होता है बारिश होता है थ्रू आउट द ईयर. एज वन मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर the number of rain days as well as amount of rainfall reduce. मतलब जैसे ही क्या हो जाता है इक्वेटर से क्या होते हैं हम लोग दूर जाते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है जो रेनफॉल है वो क्या हो जाता है रिड्यूस होते जाता है. नाउ सी दिस affect इन द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू. मतलब इसका है ना वेजिटेशन के लाइफ साइकिल पे क्या होता है इफेक्ट होता है. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट्स रेन थ्रू आउट द ईयर. मतलब बहुत सारे घना जंगल उधर दिखाई देता है, किधर दिखाई देता है तो जिधर ना होल ईयर क्या होता है बारिश होता है.
In the region which receive rainfall only during the certain season, the density of the vegetation reduce. मतलब in the region which receive rainfall only during the certain season, मतलब जब बारिश में ही सिर्फ क्या होता है उधर रेनफॉल होता है, the density of the vegetation reduce, मतलब उधर का जो डेंसिटी है वेजिटेशन का वो रिड्यूस हो जाता है. Only in that particular season there is a vegetation is take, मतलब क्रॉप्स लिए जाते हैं. Now instead of forest, various types of grasses, short shrub, thorny vegetation are found. और instead of forest मतलब उधर है ना फॉरेस्ट नहीं दिखाई देते, क्योंकि उधर घना जंगल कैसे रहेगा, क्योंकि जो समर सीजन में वो पूरा जंगल क्या हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट इफ देर इज अ होल ईयर रेनफॉल इज देयर, देन देर इज अ फॉरेस्ट इज देयर. बट देर इज सर्टन सीजन रेनफॉल इज देयर ना, देन व्हाट हैपन, देर इज some grasslands are there, then short shrubs, then thorny vegetations are found in that particular area. Brazil has the largest number of vegetation species in the world. मतलब ब्राज़ील में बहुत सारे अलग अलग तरह के वेजिटेशंस होते हैं, मतलब ये क्या फूल फल के ना प्रोडक्शन होता है. Now this include the evergreen vegetation, semi evergreen evergreen, arid one, pine trees like पाउ, ब्राज़ील, रबर, मोहगनी, रोजवुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्चिड, ये सब क्या हो जाते हैं उधर फाउंड होते हैं ये प्लांट्स एंड ट्रीज. नाउ बिकॉज ऑफ दिस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द ब्राज़ील देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट रिलीज इन द एनवायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट है ना फॉरेस्ट देयर इज अ सो मच लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज present in that particular area. Now see, therefore these rainforests are rightly called the lungs of the world, और इसके कारण ही उनको क्या बोलते हैं, lungs of the world, because there is so much oxygen and that oxygen is so useful for our body, our lungs. That's why that particular area we call the lungs of the world, because there is so much oxygen is reduced, so much oxygen is present in that area, and that oxygen helps to reduce the carbon dioxide level. और जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है उधर का कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब लेवल क्या करता है, कम करता है. नाउ इंडियन वेजिटेशन, इंडिया वेजिटेशन. नाउ सी इन द इंडिया, see there is a different types of crops are there. In the coastal area there is different crops are there, means crops taken different. Then there is a plain area, there is a different types of crops are taken, vegetables are there. Now what is the geographical explanation is there? In the region which receive more than 2000 millimeter of rainfall on average, along with the abundant sunlight, evergreen forest are found. मतलब जिधर है ना 2000 मिलीमीटर है ना क्या होती है बारिश होती है, उधर क्या होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. दिस लीव्स, द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन, और उसके जो लीव्स है ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट देर इज नो सनलाइट इज रीच अप टू द अर्थ, मतलब जमीन पे वो है ना क्या होता है ना सनलाइट भी क्या नहीं करती, पहुँची नहीं, बिकॉज ऑफ दैट ब्रॉड लीव्स. These trees have hardwood, heavy and durable, मतलब ये ना hardwood, heavy और durable रहते हैं. Now mahogany, rosewood, rubber etc. also there are various types of creepers found here. मतलब जो creepers, मतलब that creepers are take the supports of the other plants and they grow. That is the meaning of creepers. Creeper मतलब क्या, जो दूसरे plants का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट लेते हैं for the growing. Now highest biodiversity is found in this forest, और बहुत because of that there is a highest biodiversity is found in this forest, and because of that there is a so much different types of plants are and trees are present, and we see there is a biodiversity is there. In the region receive rainfall between 1000 millimeter to 2000 millimeter in India. Deciduous forests are found in the dry season. Trees shed their leaves to show that water is not lost due to the evaporation.
और उधर क्या करते हैं, जिधर 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश है तो वो समर सीजन में वो क्या करते हैं, जो प्लांट से अपने लीव्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज नो लॉस्ट ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल टीक, bamboo, banyan, people, etc. are trees found in this forest. Region that receive the less than 500 millimeter of rainfall experience dry summer for the long period in India. Thorny and shrub types vegetation are found. मतलब जिधर 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है उधर क्या होता है, बंजर जमीन होती है. एंड देयर इज अ थ्रोनी कैक्टस आर प्रेजेंट. मतलब उधर क्या हो जाते हैं, कैक्टस प्रेजेंट होते हैं. द लीव्स आर स्मॉल इन साइज for the acacia, khejri and variety of cactus like aloe vera and agua are found in that region because that plants need so little bit water. मतलब उधर जो plants उधर ग्रोथ होते हैं ना उनको बहुत सारा डेजर्ट में क्या होता है, उनको कम पानी लगता है. नाउ इन द स्वैम्पी एरिया Asterias and Logans near coastal area having the saline soil and most moist climate, coastal type of vegetation is found. मतलब जो स्वैम्पी मतलब एरिया मतलब जिधर है ना झरने और बाद में कोस्टल एरिया है जिधर पानी नज़दीक ही है. एंड बिकॉज दैट soils are saline and most climate coastal types of vegetation is found. They are called mangroves and sundarban in India. और उसको ही क्या बोलते हैं, mangrove and sundarban in India. The wood of these trees is oily, highlight and light and durable. मतलब उधर के जो ट्रीज है उसका जो वुड रहता है वो ऑयली और लाइट वेटेड रहता है एंड ड्यूरेबल होता है. इन द इंडियन हिमालय ट्रीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड. इन एरिया लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड सीजनली flowering trees are found. In the region which medium altitude coniferous trees are like a pine, deodar trees are found. मतलब जो है ना हाईएस्ट एल्टीट्यूड रहता है ना उधर का जो ट्रीज है ना वो सीजनली फ्लोरिंग ट्रीज रहते हैं. मतलब फ्लोरिंग ट्रीज रहता है, फ्लावर्स उसको आते हैं. इन द रीजन विद द मीडियम एल्टीट्यूड कैनिफेरियस मतलब उधर है ना कैनिफेरियस ट्रीज लाइक अ पाइन, देवदार, फायर्स एंड फुट हिल्स मिक्स फॉरेस्ट आर फाउंड. और फुट हिल को क्या होता है, हिमालय के मिक्स फॉरेस्ट फाउंड होता है. दिस इंक्लूड द बोथ कैनिफेरियस एंड डेसिडियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर प्रेजेंट. मतलब उधर जो फुट हिल है ना हिमालय का उधर दोनों तरह के ना क्या होते हैं, फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, कॉनिफेरियस और ये डेसिडियस. हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज हायर. मतलब इधर है ना साल ट्रीज का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या रहता है, हायर होता है. नाउ व्हाट इज वाइल्ड लाइफ इन द ब्राज़ील इज देयर. नाउ इन द ब्राज़ील देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ द ब्राज़ील. नाउ सी अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन द वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द ब्राज़ील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब इंडिया के जो अदर कंट्रीज में मतलब सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो वो ब्राज़ील में है वाइल्ड लाइफ में. नाउ इन दिस स्वैम्पी एरिया ऑफ द पांथल ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड. मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एनाकोंडाज क्या होते हैं, फाउंड होते हैं. इन द ब्राज़ील गुइनिया पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, मंकीज, pumas, leopard then are found. Among the fish variety mainly salt fish are found in the sea, which pink dolphin and piranhas are found in the river. मतलब ये जो अलग अलग तरह के फिश क्या होते हैं उधर फाउंड होते हैं. Now condors which are huge in size and fly high in the sky. ये ना जो एनिमल ये बर्ड्स होते हैं ना वो है ना क्या करते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं और वो हाई क्या करते हैं, हाई दे फ्लाई हाई इन द स्काई. मतलब बहुत आसमान में ऊंची भरारी लेते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ द पैरोट्स, मकाओ एंड फ्लेमिंगोज आर मेजर बर्ड्स फाउंड इन हियर. मतलब बहुत सारे बर्ड्स भी उधर फाउंड होते हैं. मिलियंस ऑफ द इंसेक्ट वैरायटी आर फाउंड इन द ब्राज़ील. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वैरायटी द वाइल्ड लाइफ ऑफ द ब्राज़ील
ब्राज़ील इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। इसी के कारण ब्राज़ील में जो बायोडाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ का वो ज़्यादा ही क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, deforestation, pollution, etc. The Brazil is facing these problems today. Many endemic species are not on the verge of getting extinct because of this issue. मतलब उधर की जो स्मगलिंग अभी क्या करते हैं लोग है ना, एनिमल्स को क्या करते हैं, उनके फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, बेच देते हैं। उनकी जो स्किन है वो निकाल के उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। एंड दैट दे सेल दैट स्किन टू दैट शॉपकीपर्स फॉर मेकिंग दैट टॉवेल्स, अदरवाइज ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, वो बनाने के लिए उनकी स्किन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ सो मच रेयर फिशेस आर एक्सिंक्ट, मतलब वो क्या होते हैं, ख़त्म होने को आए ब्राज़ील के। नाउ वी कंप्लीटेड द ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ, नाउ वी लर्न द इंडिया वाइल्ड लाइफ इज़ देयर। नाउ व्हाट इज़ इंडिया? देयर इज़ अ बंगाल टाइगर इज़ देयर, बंगाल टाइगर, then great Indian bustard, then olive ridley turtles, one horn rhinos, Nilgiri, Thar goat, then lion, genetic dolphin, swamp deer, crocodiles, gharials, एलिगेटर, घरियल्स को ही क्या बोलते हैं, एलिगेटर बोलते हैं। दैट ऑल एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द इंडिया। नाउ सी द geographical explanation about the wildlife of India. Now India is also the mega diverse country in the terms of the wildlife. There are many species of wildlife in the India. Elephants are found in the hot and humid forest, मतलब hot और humid forest में elephants क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। Now one horn rhinoceros are found in the swampy and marshy land of the Assam, मतलब आसाम में जिधर चिक्कल की और ज़्यादा है ना बारिश की ज़मीन है, उधर क्या होता है, ये जो एक शिंगी गेंडा रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, और वो ज़्यादा करके आसाम में होते हैं। वाइल्ड एज एंड कैमल्स आर फाउंड इन द एरिड लैंड, स्नो लिपर्ड एंड याक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप रीजन ऑफ हिमालय। हिमालय में वो है ना बर्फाले एनिमल्स, मतलब गाय, बाइसॉन, इंडियन बाइसॉन, देन डियर, एंटेलोप्स एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिसुलर रीजन। मतलब जो है ना याक्स और जो स्नो लिपर्ड होते हैं ना, वो है ना किधर फाउंड होते हैं, हिमालय में होते हैं। और जो पेनिसुलर रीजन है ना, उधर है ना बाइसॉन, डियर, एंटेलोप्स एंड मंकीज आर फाउंड। इंडिया इज़ ओनली द कंट्री इन विच इन द वर्ल्ड वेयर द बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। मतलब इंडिया ऐसा एक ही कंट्री है जिधर लायंस और टाइगर दोनों भी फाउंड होते हैं। रिवर एस्चुरियस एंड कोस्टल एरियाज आर होम ऑफ द मेनी टर्टल्स, मतलब टर्टल्स का है ना रिवर्स ये क्या है, होम है। क्रोकोडाइल एंड गैवल्स दैट फॉरेस्ट आर वेटलैंड आर द शेल्टर ऑफ द वैरायटी ऑफ द बर्ड लाइक पीकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर एंड पिजेंट एंड डक। मतलब जो ज़मीन है ना पानी से भरी है, ऐसी ज़मीन में क्या करते हैं, पीकॉक्स, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर, देन पिजेंट, डक्स आर फाउंड। Now parakeets, parakeet crane and pigeons, all these species make it the land unique habitat of wildlife। और ये जो एनिमल्स है वो सब उस लैंड को क्या करते हैं, हैबिटेट बनाते हैं। Many species of the India are on the verge of the existence from the India because of the poaching, pollution and rapidly occurring the deforestation। मतलब इंडिया में भी डिफॉरेस्टेशन का होना चालू हुआ है, इसके कारण बहुत सारे एनिमल्स क्या हो रहे हैं, मरते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ रेयर स्पीसीज आर नॉट फाउंड। नाउ चीताज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लैंड फॉरेस्ट इन इंडिया। मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो एनिमल्स है उनका प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है, जंगल में कोई भी जाके उनको मार देता है, उनका स्किन निकाल के वो बेच देते हैं,
जो एलिफेंट्स हैं उनके टीथ निकाल के बेच देते हैं. बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ स्मगलिंग इज़ मतलब स्मगलिंग इज़ गोइंग ऑन इन द फॉरेस्ट. बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. व्हाट दे डिड, they make that national park, and there is a they give protection to that wildlife animals. And because of that government take the so much other strict rules on that protection for the animals. अगर किसी भी animals को हम लोग मारते हैं तो there is a means we get the punishment from the court also, because that animals are the wealth of our country. मतलब वो हमारे कंट्री की क्या है, वेल्थ है. टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीज डे बाय डे. द सेंचुरी इज सिचुएशन इज सिमिलर टू द एलिफेंट. मतलब टाइगर ही हमारा है ना नेशनल एनिमल है, और वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. एंड दैट सिचुएशन इज द सेम फॉर द एलिफेंट ऑल्सो. फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सच प्लांट्स एंड एनिमल्स. find about the habitat. What should we do for the conservation of animal? What we do for the conservation of animals, we have to take care of them. If there is a someone come and kill them, then you have to give notice to that particular person. Otherwise you give complaints against that person to the forest officer, and because of that we can protect the wildlife animals. Thank you all of you. Now the homework is there. What is homework is there? The lesson is completed. That's why you have to complete the exercise which one is given in the textbook. You have to solve and you have to send me on my mobile number. Okay, thank you all of you.